It's a little revision from yesterday's topic. Lower esophageal sphincter, when it is relaxed, it is open. Okay, when it relaxes, it opens. So it keeps open injured. इसमें reflux होता है. When lower esophageal sphincter is contracted, it closes here. But in achalasia, it keeps closed. That it keeps contracted. तो इसलिए हम calcium channel blockers और nitrate देते हैं relax कराने के लिए. See, nitrates क्या करते हैं? Inhibit करते हैं muscle contraction को. Introduce कराते हैं relaxation को. इसलिए हम देते हैं ताकि वो खुल जाए. अगर वो contracted रहता है, वो closed रहता है, the person will vomit, will feel dysphagia क्योंकि आगे passage block हुआ हुआ है. It is closed. So is it a bit more clear than yesterday? जब वो relax होता है, it's open, and injured, it keeps open so that acid and other food contents come out, come all the way back to the esophagus. ये जर्ड में हो रहा होता है. Give me a thumbs up if you understand this. Okay, now let's proceed towards acute gastritis. Acute gastritis means gastric inflammation हो गई है. And gastric inflammation happens when there is more acid or you lose your protective mucosal function. A mucosal function protective ऐसे कि mucosa is lined by epithelium और bicarbonates produce हो रहे होते हैं जो कि neutralize कर रहे होते हैं the acid present there. और दूसरी बात है blood supply आ रही होती है. Blood supply क्या करती है? Nutrients provide करती है so that your epithelium grows and replenishes and it takes away excess acid. In acute gastritis, NSAID, alcohol, chemo, H. pylori, all of these things damage your gastric mucosa or they introduce more acid secretion. NSAIDs में क्या करते हैं? Prostaglandins block कर देते हैं. Prostaglandins क्या करते थे? What does prostaglandins do? Prostaglandins क्या करते हैं? Inhibit कर देते हैं acid production, so there will be more acid production. जो parietal cells होते हैं, they produce acid. अब एसिड सिक्रीशंस इन पे कौन कौन सी चीजें स्टिमुलेट करती हैं? एसिटाइल कोलिन, हिस्टामिन स्टिमुलेट करेंगी, मोर एसिड विल बी मेड. और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं. अब आप एनसेड दे रहे हो जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन का इनहिबिटर है, देयर विल बी मोर एसिड प्रोडक्शन. अल्कोहल डैमेज करता है म्यूकोजा, तो ऑल ऑफ योर डिफेंसेस विल बी लॉस्ट. कीमोथेरेपी में देयर इज लेस epithelial cell replication, so there is nothing to protect your mucosa. H. pylori बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज करता है. अच्छा, mechanism of H. pylori induced gastritis is कि एक तो this bacteria has flagella, so it is very mobile, it can go anywhere. फिर इसके बाद it produces urease. अब urease क्या करते हैं? अमोनिया को break down करता है, यूरिया को break down करता है into ammonia. Urea is broken down into ammonia plus CO2. इस CO2 को हम measure करते हैं टेस्ट में to see if H. pylori is present or not. तो यूरियस इसके पास कहाँ से आता है? इसके पास यूरियस होता है जो हमारी बॉडी में नॉर्मली प्रेजेंट नहीं है. तो इससे यूरिया ब्रेक डाउन होते हैं अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में. जब अमोनिया आता है तो पीएच ज्यादा हो जाता है और इसका सर्वाइवल के चांसेस विल इंक्रीज, अदरवाइज इट्स डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन एसिडिक पीएच. उसके बाद इट हैज एडिशंस जिससे वो अटैच हो जाते हैं गैस्ट्रिक म्यूकोजा में. ऑल्सो कुछ टॉक्सिन्स होते हैं CAGA, VACA, साइटोटॉक्सिन्स होते हैं जिनसे इट हैज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस अल्सर एंड कैंसर डेवलपमेंट. अब ये इस तरह से होता है कि ये CAGA, VACA जीन्स जो होते हैं ये न्यूमरस सिग्नलिंग पाथवे को इन सेल रेप्लिकेशन एंड अपोप्टोसिस को इंड्यूस करवा के सब कुछ डिस्टर्ब कर देते हैं. सेल परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एपिथेलियम से बाहर चले जाते हैं और लोकल इम्यूनिटी होती है सेल एक्टिविटी की वो खराब हो जाती है, तो सेल कैन नॉट प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. अब in acute gastritis we give IV H2 receptor antagonist. Can you name one H2 receptor antagonist?
Can you name one IV H2 receptor? Cimetidine, famotidine. Omeprazole is proton pump inhibitor. It's not H2 receptor antagonist. Second line में हम IV proton pump inhibitor देते हैं. First line में ranitidine, cimetidine, famotidine. Okay. क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस की अब दो टाइप्स होती हैं. एक्यूट गैस्ट्राइटिस की तो ये नंबर ऑफ कॉजेस थी, एनसेड, अल्कोहल, कीमो, एच पाइलोरी. जो क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस होते हैं टाइप ए एंड टाइप बी. टाइप ए ऑटो इम्यून होता है. यू मेक एंटीबॉडीज अगेंस्ट ब्राइटर सेल, तो गैस्ट्रिक म्यूकोसा एट्रोपी कर जाता है. एंड टाइप बी इज ड्यू टू एच पाइलोरी की इन्फेक्शन कंटिन्यू रहती है. And if H. pylori infection keeps going on, you develop peptic ulcer disease. A peptic ulcer disease is more common in men. And it has two types. एक duodenal ulcer होता है और एक होता है gastric ulcer. Duodenal ulcer is more likely to be caused by H. pylori. Gastric ulcer is 70% of the time caused by H. pylori, but there can be other causes too. अगर आप NSAID को stop नहीं करोगे, तो you can develop peptic ulcer disease. Duodenal ulcer have low malignant potential, but gastric ulcer have very high malignant potential. And duodenal ulcer जो होते हैं पाइलोरिस के पास होते हैं, ये इधर होते हैं जहाँ पे duodenum स्टार्ट होगा, ऑब्वियसली वहीं पे होंगे. बट गैस्ट्रिक अल्सर्स की देयर आर लॉट ऑफ लोकेशन. जो मोस्ट कॉमन लोकेशन है ना, वो लेसर कर्वेचर पे, यहाँ पे. उसके बाद duodenal ulcer occurs in younger patient. Gastric ulcer happen in older patient, so more likely to be malignant because your mucosal defenses go down as you age. Duodenal ulcer is also caused by NSAIDs, gastric ulcer, smoking. अच्छा, अब एक और डिफरेंस है जो सिम्टम्स से बताएगा. जो पेशेंट कहेगा कि whenever I eat I become better, तो वो duodenal ulcer में होगा. और duodenal ulcer के symptoms at night common होंगे when your stomach will be empty. क्यों? जब फूड आएगा तो वो एज बफर एक्ट करेगा इन स्टमक. वो सारा एसिड जो एक्सेस पड़ा होगा वो सारा उस फूड पे लग जाएगा. सो यू विल फील बेटर इन duodenal ulcer आफ्टर ईटिंग. बट गैस्ट्रिक में जो गैस्ट्रिक अल्सर्स है यहाँ पे हैं, इसमें क्या होगा? व्हेन यू विल कंज्यूम फूड, more acid will be produced, so the person will stop eating और weight loss होगा. In gastric ulcers, क्योंकि उसकी location is more common on lesser curvature, when you consume food, more acid will be produced, pain will be increased, and the person will refuse to eat or weight loss होगा. Duodenal ulcer में the people gain weight. अब investigations क्या क्या कराएंगे हम? एंडोस्कोपी इज और प्रेफर्ड इन्वेस्टिगेशन. साथ में हम बायोप्सी करा लेते हैं. बायोप्सी इसलिए कराते हैं टू रूल आउट मेलिग्नेंसी. यूरिया ब्रेथ टेस्ट, फीकल एंटीजन टेस्ट. फीकल एंटीजन में चेक करते हैं कि सीरोलॉजी. अच्छा, दिस टेबल यू हैव टू मेमोराइज, बट लेट मी गिव अ लिटिल डिस्क्रिप्शन. उसमें सीरोलॉजी जब लिखा होता है तो उसमें हम आईजीजी एंटीबॉडी चेक करते हैं एच पाइलोरी की. सीरोलॉजी का मतलब है यू टेक आउट पेशेंट सीरम, but it cannot differentiate कि अभी treated है या active है. Once you form this antibody against H. pylori, it does not show. It just shows you were once infected. अभी active है या treated है, you cannot differentiate. Urea breath test में क्या होता है कि आप उसको देते हो radioactive labeled urea. Person will consume urea. If H. pylori is present, तो उसके पास urease होगा. वो CO2 और अमोनिया में कन्वर्ट कर देगा. अब यू विल डिटेक्ट दिस CO2. अगर CO2 प्रेजेंट है तो इसका मतलब यूरियस है. यूरियस है तो यूरियस इज कमिंग फ्रॉम H. pylori. बट दिस टेस्ट कैन कम नेगेटिव इफ द पर्सन वाज गेटिंग ट्रीटमेंट. एंटीबायोटिक्स है तो
पायलोरी की कम might be less number of H pylori present, तो less आएगा CO2 and you will get false negative test. स्टूल एंटीजन में आपने स्टूल का टेस्ट कराना है, उसमें H pylori एंटीजन मिले, it's highly specific and sensitive and cost effective too. एंडोस्कोपी में क्या करना है, चेक करना है बायोप्सी, but it's a invasive test. अब दिस टेबल शोज नॉन इन्वेजिव में सीरोलॉजी कर ली, सीरम चेक कर ली हमने, एंटीबॉडीज अगेंस्ट एच पाइलोरी, एंड रेडियो एक्टिव लेबल्ड कार्बन यूरिया ब्रेथ टेस्ट करा लिया, फीकल एंटीजन कर लिया. इट इज चीप एंड स्पेसिफिक. इन्वेजिव में यू हैव टू डू एंडोस्कोपी और हिस्टोलॉजी की, रैपिड यूरिएज टेस्ट किया एंड माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर किया जो गोल्ड स्टैंडर्ड है. वो शो करेगा कि विच ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट इन योर गट. दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड. इट विल बी आस्क्ड इन एमसीक्यू कि कौन सा गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है. तो नॉन इन्वेसिव हमारे पास सीरोलॉजी है जिसमें हम सीरम में एंटीबॉडीज चेक करते हैं, कार्बन रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो लेबल्ड होगा, यूरिया ब्रेथ टेस्ट कर सकते हैं, फीकल एंटीजन कर सकते हैं. ये नॉन इन्वेसिव 3 टेस्ट हो गए. एंड 3 इन्वेसिव टेस्ट हैं कि आप एंडोस्कोपी करके हिस्टोलॉजी लो, पंच करो, बायोप्सी लो, रैपिड यूरिएज टेस्ट कराओ, माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर लो, वहीं से सैंपल लेके उसको कल्चर करो. अब मैनेजमेंट क्या होगी इफ पेप्टिक अल्सर डिजीज, तो आपने एच पाइलोरी को इरेडिकेट करना है. सो इन ट्रिपल थेरेपी you'd give 2 एंटीबायोटिक्स, एक एमोक्सिसिलिन, एक क्लेथ्रोमाइसिन, ठीक है, एंड 1 प्रोटॉन पंप. एटलीस्ट हम 7 डेज के लिए देते हैं, बट इट इज मोर इफेक्टिव इफ यू गिव इट फॉर 10 to 14 days और ट्वाइस डेली डोजिंग करें, यानी ओडी में ना दें प्रोटॉन पंप. दिस इज ट्रिपल थेरेपी. प्रोटॉन पंप ओमोप्रेजोल 20 mg BD में, क्लेथ्रोमाइसिन 500 BD में, एमोक्सिसिलिन 1 ग्राम BD और मेटोनिडाजोल 500 BD. अच्छा, और क्वाड्रुपल थेरेपी होती है अगर फिर भी द पर्सन डज नॉट रिकवर एंड एक्सपीरियंसेस द सेम सिम्टम, तो हम उसको क्वाड्रुपल थेरेपी करते हैं. क्वाड मींस 4 देते हैं. ओमोप्रेजोल 20 mg BD, टेट्रासाइक्लिन 500, मेट्रोनिडाजोल 25 250 mg क्यूआईडी में देते हैं. और बिस्मथ के जो होते हैं ना, एक ही प्रेपरेशन में आता है पाकिस्तान में, उसकी 2 टेबलेट्स देते हैं दिन में 4 टाइम्स. इन सब में सबसे एक्सपेंसिव जो दवाई में पड़ती है वो ओमोप्रेजोल पड़ती है. प्रोटॉन पंप्स आर एक्सपेंसिव. उसके बाद जनरल मैयर्स में हम कहते हैं सिगरेट स्मोकिंग, एस्पिरिन, एनसेड्स, ये सारे छोड़ दें. एंड इफ द सिम्टम्स कंटिन्यू तो पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी भी करनी पड़ती है. यू हैव टू रिमूव द गैस्ट्रिक म्यूकोसा जो कि ओवरली सिक्रीट कर रहा होता है, जिसके बाद वागस नर्व जो सप्लाई कर रही होती है gastric parietal cells को, और इतनी ज्यादा स्वेयर एसिड सेक्रीशन है, सो यू हैव टू कट दैट वागस नर्व सप्लाई एज वेल. विगोटमी कहते हैं उसको. अब कॉम्प्लिकेशन है पीयूडी की. कॉम्प्लिकेशन पीयूडी की है, एक तो है कि परफोरेट कर जाए वो जो अल्सर बना हुआ है. इसको हमें कैसे पता चलेगा? एक्यूट प्रेजेंटेशन होगी और पेरिटोनाइटिस के साथ प्रेजेंट करेगा. पेरिटोनाइटिस, व्हाट इज पेरिटोनाइटिस मीन? जो भी सारी पस इन्फेक्शन है वो सारी पेरिटोनियम में फैल जाएगी, पेन हो रही होगी, बोर्ड लाइक रिजिडिटी होगी, जब आप एब्डोमेन को टच करोगे इमोबाइल होगा. और उसके बाद एक्सरे करा के इनका देखोगे तो एयर अंदर डायफ्राम आएगी. एयर अंदर डायफ्राम कहाँ से आएगी? सिंस आपका परफोरेशन होगी गैस्ट्रिक अल्सर से, डायफ्राम ऐसे था एंड देन देयर वाज स्टमक, परफोरेट कर गए तो एयर आ गई है, एयर अंदर डायफ्राम नजर आएगी. और फिर हमें इमरजेंसी लेप्रोटमी करके इसको क्लोज करना पड़ेगा. साथ में जो हमारी बेसिक प्रॉब्लम थी एक्सेस एसिड सिक्रीशन, विगोटमी भी करनी पड़ेगी. और पाइलोप्लास्टी, अगर स्टमक जहाँ से परफोरेटेड है उसको भी क्लोज करना पड़ेगा. दूसरी कॉम्प्लिकेशन है गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन. This happens in the region of pylorus. So which type of PUD or is ulcer was common, duodenal or gastric in the region of pylorus? कौन सा वाला कॉमन था?
ड्यूडेनल अल्सर था नीचे, क्योंकि ड्यूडेनम नीचे होती है। इसमें क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी एंड द पर्सन विल बी वॉमिटिंग आउट, सारा सारा कुछ वॉमिट आउट कर रहा होगा। जब हम वॉमिट आउट करते हैं तो सारा एसिड कंटेंट बाहर चला जाता है। सो वी लूज और क्लोरीन, वी लूज और एसिड, हाइपोक्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है, साथ में पोटेशियम भी लो हो जाता है वॉमिटिंग से, डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो इन लोगों का हमने एनजी से, एनजी डालनी, एनजी से और भी ज्यादा जितनी वॉमिट कर दी उसके अलावा कंटेंट विल बी प्रेजेंट इन देयर स्टमक। तो एनजी सक्शन से हमने और भी ज्यादा जितना भी सारा निकलता है निकाल देना है, इलेक्ट्रोलाइट और वॉल्यूम रिप्लेस करना है। इन बुक इट इज रिटन 4 लीटर आइसोटोनिक हमने देना है उनको, एटलीस्ट 4 लीटर आइसोटोनिक सेलाइन देना है और पोटेशियम को रिप्लेस करना है ड्यूरिंग फर्स्ट 24 आवर्स इन लोगों का। अच्छा, इन गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन देयर इज समथिंग कॉल्ड सक्सेशन स्प्लैश होगी जब क्लिनिकल एग्जामिनेशन करोगे आप। सक्सेशन स्प्लैश होगी क्योंकि नीचे आगे जाने का पाथवे इज क्लोज्ड। सो जब स्टेथ रख के आप पेशेंट को मूव करवाओगे, यू विल हियर समथिंग लाइक दिस। सो सक्सेशन स्प्लैश जो है गैस्ट्रिक स्प्लैश है, स्लॉशिंग साउंड आती है जब आप स्टेथ प्लेस करते हो जिसकी आगे गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, तो गैस और फ्लूइड जो है ऑब्स्ट्रक्टेड ऑर्गन में मूव करता है ना, तो ऐसी आवाज आती है, स्लॉशिंग साउंड आती है, स्टेथ से सुनते हैं। तीसरी पीयूडी की कॉम्प्लिकेशन है जीआई ब्लीडिंग, कि वो परफोरेट करेगा एंड देन यू विल प्रेजेंट विद शॉक एंड ब्लीडिंग। अच्छा, अब पहले ब्लड सप्लाई कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ से ब्लीड होगी। हमारे पास दो लोकेशंस थी जहाँ पे पेप्टिक अल्सर वाज प्रेजेंट। इट वाज प्रेजेंट हेयर इन लेसर कर्वेचर, लेसर कर्वेचर की सप्लाई है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। अगर गैस्ट्रिक अल्सर ब्लीड करेगा तो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से ब्लीडिंग होगी, और अगर ड्यूडेनल अल्सर ब्लीड करेगा तो देखो ये गैस्ट्रिक ड्यूडेनल इस रीजन को, पाइलोरिक रीजन को सप्लाई करी गैस्ट्रो ड्यूडेनल आर्टरी, यहाँ से ब्लीडिंग होगी। ठीक है, एंड इट विल बी अपर जीआई ब्लीड, तो आपने फौरन उसको रिसेसिटेट करना है, एंडोस्कोपी से लोकेशन देखनी है और उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है। इसको डिटेल में करना है। अच्छा, अपर जीआई ब्लीड होगी एंड वन ऑफ द कॉज वी आर डूइंग इज पेप्टिक अल्सर डिजीज। अपर जीआई ब्लीड कैसे कहते हैं, कैसे पता है कि वो अपर जीआई से हो रही है, लोअर जीआई से हो रही है? ब्लीडिंग जब होती है, एक तो सही कह रही है, इट कम्स आउट इन स्टूल, तो वी थिंक इट्स लोअर जीआई ब्लीड। जब वो ऊपर से आती है, हेमेटोमेसिस होती है, तो वी थिंक कि इट इज कमिंग आउट फ्रॉम अपर जीआई। इन दोनों को ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं कि जो लिगामेंट ऑफ टीरीज से ऊपर होती है ना, लिगामेंट ऑफ टीरीज or trites is a thin band of tissue of peritoneum that connects and supports ends of duodenum and beginning of the jejunum in the small intestine. It's a suspensory muscle of duodenum. This इससे ऊपर ब्लीड होती है तो हम कहते हैं अपर जीआई पे ब्लीड हो रही है, और इससे लोअर जो ब्लीड होती है वी कॉल इट लोअर जीआई ब्लीड। ठीक है, अपर जीआई ब्लीड happens proximal to ligament of tries. It results in hematomesis, often caused by peptic ulcer. मेलिना डार्क स्टूल भी आ सकते हैं, क्यों? क्योंकि उस पे एक्सपोज हो चुका होगा एसिड, ब्लड एक्सपोज हो चुका होगा एसिड को, एंड बैक्टीरिया विल एक्ट, तो फिर डार्क स्टूल, डार्क टैरी स्टूल भी आ सकते हैं। इन कंपेयर्ड विद हीमोचीजिया जिसमें रेड आते हैं तो ब्लीडिंग पर रेक्टम हो रही होती है, उसको हम कहते हैं। अच्छा, हमारे पास कॉजेस क्या क्या है अपर जीआई ब्लीड की? एसोफेजाइटिस कल हमने की थी,
Then other causes are NSAID or Helicobacter pylori induced peptic ulcer, aortoduodenal fistulas बन सकते हैं, portal vein thrombosis, liver disease, yes, Milroy Vis, which is very rare. Most common cause is peptic ulcer disease. 50% of the time this is the cause. Agar there is cancer of stomach or esophagus, then you will have upper GI bleed. Gastric erosions हो सकते हैं due to alcohol. अब हमने मैनेज कैसे करना होता है if the person presents with upper GI bleed. आपने 2 IV लाइन लगानी है उसकी, and then you will have to assess the clinical status of the person कि वो शॉक में है कि नहीं. अब कैसे असेस करना है? आपने उसका बीपी देखना है कि वो हाइपोटेंसिव तो नहीं हो रहा, पल्स रेट देखनी है, टेकिकार्डिया में तो नहीं जा रहा, रेस्पिरेटरी रेट, SpO2, साथ में उसका फोली लगानी है यूरिन आउटपुट देखने के लिए. जब हम शॉक में जाते हैं और यूरिन आउटपुट डिक्रीजेस, साथ में उसका एब्डोमेन देखना है. एब्डोमेन पे देखना है लिवर डिजीजेस के साइन होंगे, जॉन्डिस, स्टिग्मेटास, हेपेटोस्प्लीनोमेगेली तो नहीं है. टू दिस इज टू रूल आउट कि उसकी लिवर डिजीज कॉज ना हो. ठीक हो गया. उसके बाद आपने सारी बेस लाइन इन्वेस्टिगेशंस करवानी है. CBC जो कि हीमोग्लोबिन देखना है. अगर उसको इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत हो तो वी कैन अरेंज फॉरेन CBC भिजवानी. यूरिया इलेक्ट्रोलाइट देखना है. द पर्सन इज गोइंग इन रीनल फेलियर और इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटी है, उसको भी करेक्ट करना है. क्योंकि वॉमिट की वजह से व्हाट एल्स वर यू लूजिंग? यू वर लूजिंग योर इलेक्ट्रोलाइट. पोटेशियम बाहर जा रहा था, क्लोराइड बाहर जा रहा था. उसके बाद लिवर फंक्शन टेस्ट कराने टू रूल आउट क्रॉनिक लिवर डिजीज. प्रोथ्रोम्बिन टाइम करवाने अगेन टू रूल आउट लिवर डिजीज, या फिर कोई एंटीकोगुलेंट्स पे नहीं थे जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही, ताकि हम वो करेक्ट कर सकें. अगर प्रोथ्रोम्बिन टाइम है तो उसको फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा से करेक्ट करेंगे, क्रायो से करेक्ट करेंगे. और फिर क्रॉस मैच करवा के 2 प्रिंट्स ऑफ ब्लड अरेंज करके रख लेना है. रिसेसिटेशन करनी हम इंट्रावीनस क्रिस्टोलाइड से देते हैं. जैसे ही हमारे पास कोई इमरजेंसी में अपर जीआई ब्लीड का पेशेंट आता है तो हम उसको फौरन क्या करते हैं, हिमासिल लगा देते हैं. ये इस तरह का फ्लूइड होता है, इस इंट्रावीनस कोलाइड होता है, इसको लगा देते हैं. और ये क्या करते हैं, जब आपका सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम कम होता है ड्यू टू हैमरेज, तो उसमें ये बीपी आपका नॉर्मलाइज करता है. ऑक्सीजन लगा देते हैं. और एंडोस्कोपी हमने करनी होती है विद इन 24 आवर्स. जैसे ही आपने रिसेसिटेट कर लिया, ब्लड लगा दिया, उसके इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह करेक्ट कर लिए, 24 आवर्स में एंडोस्कोपी करनी है. अगर वहां पे हमें कोई ब्लीडिंग आर्टरी वगैरह नजर आती है तो उसको क्लिप लगा देते हैं या उसकी कॉटरी कर देते हैं. साथ में बैंड लाइगेशन कर सकते हैं. दिस हैपेंस इन वेरेसीज. ठीक है, या टिप्स करते हैं. Transjugular intrahepatic portosystemic shunts. We will repeat these all procedures जब वेरिसियल ब्लीड कर रहे होंगे. साथ में उसकी मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, अर्ली मॉनिटरिंग पल्स की, बीपी की, एंड यूरिन आउटपुट की. अच्छा, सर्जरी तब करनी है जब हमें एंडोस्कोपिक पता चल गया कि कॉज क्या थी, हेमाटोमेसिस की, और हमने ब्लीडिंग भी सिक्योर कर लिया, ब्लीड नहीं कर रहा वो. अगर डिओडेनल अल्सर कॉज थी तो हमने पाइलोप्लास्टी करनी है. और हमने बायोप्सी भी सब एंडोस्कोपी के साथ कर ली थी. हमें अगर कॉजेस मिल जाती हैं, अगर टेस्ट हमारे पॉजिटिव आ जाते हैं एच पाइलोरी के लिए, या हमें उसकी हिस्ट्री में पता चल जाता है एनसेड है, तो हमने इन सारी कॉजेस को ट्रीट करना है. ये एंडोस्कोपी में क्या करें, एक्टिव ब्लीड को कॉटरी कर रहे हैं या इंजेक्शन ऑफ एड्रेनालिन दे रहे हैं सो दैट इट स्टॉप्स ब्लीडिंग. हीट प्रोब एप्लीकेशन का मीनिंग है क्रायो कर रहे हैं, या इंजेक्शन ऑफ एड्रेनालिन दे रहे हैं ताकि वेजो कंस्ट्रिक्शन कॉज हो.
Okay, a 38-year-old barber presents to emergency with hematemesis. On examination, his pulse rate is 1110, which is tachycardia. साथ में बीपी देखो hypertensive हुआ है वो. What are the four most likely causes of his condition? Upper GI bleed की, presenting with shock. What are the four most likely causes of the condition? So, 50% of the time peptic ulcer disease थी, esophagitis, right? और liver disease, varices हो सकते हैं. Alcohol use, एक तो peptic ulcer disease due to NSAID and H. pylori. लिवर डिजीज हो सकती है, portal vein thrombosis, gastric erosions, esophagitis. Enumerate four most important procedures in the management of this patient. Four more important procedures in the management of the. एक तो आपने resuscitate कर लिया, उसके बाद बेसलाइन सेंड कर दी, CBC, PT, APTT, INR, also LFTs, RFTs. एंडोस्कोपी करनी है, इसमें थेरेप्यूटिक भी कर सकते हैं. How does liver disease cause hematemesis? Variceal bleed हो सकती है, portal vein thrombosis हो सकता है, और also through clotting deficiency भी हो सकती है. But clotting deficiency की वजह से कम होती है. It is due to varices जो बन जाते हैं उनकी bleed होती है. अच्छा, एंडोस्कोपी में हमने जो लिखने हैं, थर्मल प्रोब्स यूज कर सकते हैं हम स्टॉप करने के लिए. हम we could give injection of adrenaline, and what other things we were doing? We could do band ligation अगर varices हैं तो. Tips again if varices are present. Write down the most important investigation in this case. इन्वेस्टिगेशंस भी वही हैं, बेसलाइन करानी थी, CBC, PT, INR, LFTs, RFTs. CBC पे हम देख रहे थे हीमोग्लोबिन कितना है, हाउ मच ब्लड डू वी नीड टू ट्रांसफ्यूज, और एंडोस्कोपी करके देख रहे थे कि कहाँ पे लीजन है और कॉज क्या है. उसके बाद व्हाट अदर इन्वेस्टिगेशंस वर वी आस्किंग फॉर? यूरिया ब्रेथ टेस्ट करवा रहे थे लेटर ऑन, फीकल एंटीजन टेस्टिंग करा रहे थे. अच्छा, 35-year-old person presents with history of persistent pain in upper abdomen for past 2 months. There is no history of previous illness. He denies taking any medicine. His father died of tumor in abdomen.
in his mid-40s. On examination, he is pale and there's tenderness in the epigastrium. What are the differential diagnosis? एपिगैस्ट्रियम के अंदर कौन से ऑर्गन्स पड़े होते हैं और उन्हीं की कंडीशंस लिखनी है. उसको एपिगैस्ट्रियम में पेन है. शाबाश, पेनकिटाइटिस हो सकता है. What else? उसके फादर को हिस्ट्री है सीए. Why are you not writing सीए स्टमक हो सकता है. ये देखो, ये एपिगैस्ट्रियम है. इधर क्या क्या आता है? स्टमक होता है, लिवर होता है, पैनक्रियाज होते हैं. दुओडेनम का फर्स्ट पार्ट होता है. और एपिगैस्ट्रियम में हमारे पास अल्सर्स आ सकते हैं, बिलियरी कोलिक आ सकते हैं, रिफ्लक्स आ सकते हैं, एमआई का पेन आ सकता है. So somebody said pancreatitis हो सकता है, सीए स्टमक हो सकता है, पीयूडी हो सकता है, बिलियरी कोलिक हो सकता है. नेम 3 specific investigation to confirm the diagnosis. We will start with ECG. सबसे पहले ECG करेंगे. एमआई का पेन भी इसको रिकरेंट हो सकता है ना, एंजाइना. ECG से स्टार्ट करेंगे, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन कराएंगे और फिर अपर जीआई एंडोस्कोपी विद बायोप्सी कराएंगे बिकॉज हिज फादर हैज हिस्ट्री ऑफ स्टमक कार्सिनोमा. A 55-year-old male presents with 2 days history of burning in epigastrium with nausea and vomiting. He has passed black, tarry, foul-smelling stool this morning and is worried. He gives history of intake of some medication for joint pain. Can you tell me what medication do we give for joint pain? Joint pain के लिए हम क्या medication देते हैं? NSAID. What is the most likely diagnosis and what is the cause? What is the most likely diagnosis? Peptic ulcer disease presenting with complication. Now perforate हो गया, bleed कर रहा है. Black tarry stools mean it's bleeding. PUD presented with complication, bleeding. What is the cause? NSAID induced peptic ulcer disease because he was taking painkillers for joint pain. Enumerate 4 other probable causative factors for such presentation. क्या other 4 other probable causative factors हो सकते हैं for such presentation? अच्छा, सच प्रेजेंटेशन में ब्लैक टारी स्टूल्स, अपर जीआई ब्लीड की 4 कॉजेस लिखनी है. क्या हो सकते हैं? और H. pylori induced peptic ulcer disease. What else? एसोफेजाइटिस हो सकता है उसको, लिवर डिजीज हो सकती है, पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है, सीए ऑफ स्टमक एसोफेगस हो सकता है, अल्कोहल इंड्यूस्ड गैस्ट्रिक इरोजन हो सकते हैं. What can be 2 differentials? What can be 2 differentials of peptic ulcer disease? Burning epigastrium and the 2 differentials could be GERD, could be Crohn disease. What investigation are available for diagnosis of bacterial infection causing these symptoms? And what 4 drugs will you use? What are the available? हम इसके करते थे नॉन इन्वेजिव और इन्वेजिव. नॉन इन्वेजिव में हमारे पास क्या था? सीरोलॉजी थी, नहीं सॉरी, इसके डिफरेंशियल में आप गलत बता रहे हैं. इसके डिफरेंशियल में आप गैस्ट्रिक अल्सर डुओडेनल अल्सर नहीं लिखोगे, गलत आंसर है, 0 मार्क्स मिलेंगे. इसके 2 डिफरेंशियल बताने जिसमें पेन इन एपिगैस्ट्रियम भी हो, साथ में ब्लैक टारी स्टूल्स भी आए. तो कुड बी जर्ड, जर्ड में बाद में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती थी अपर जीआई में. कुड बी क्रोन्स डिजीज, उसमें भी ब्लीड होती है, जीआई ट्रैक में ब्लीडिंग होती है, साथ पेन भी होती है. तो इसमें ये नहीं लिख देना 2 डिफरेंशियल में गैस्ट्रिक अल्सर डुओडेनल अल्सर, 0 मार्क्स. उसके बाद वो कह रहे हैं अगर इसकी कॉजेटिव फैक्टर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती तब क्या सिम्टम्स आते हैं?
तब क्या हमारे पास तब क्या इन्वेस्टिगेशन के मेथड होते? नॉन इन्वेजिव में वी हैड सिरोलॉजी, यूरिया ब्लड टेस्ट, फीकल एंटीजन। और इन्वेजिव में हमारे पास क्या करनी थी? बायोप्सी लेनी थी, जिसको हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना था एंडोस्कोपी के बाद, रैपिड यूरिएज टेस्ट और माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर। ट्रीटमेंट करने के लिए 4 ड्रग्स कौन से हैं हमारे पास? एक है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, omeprazole, we had amoxicillin, bismuth, clarithromycin, metronidazole। अच्छा, जेनरिक नेम बता सकते हो जो ब्रांड नेम हमारे पास आता है इसका, मेट्रोनिडाजोल का? फ्लेजिल कहते हैं उसे। A 35-year-old male seen in emergency department with 2 days history of coffee colored vomiting, epigastrium pain. There is history of NSAIDs for his chronic lower back pain. Patient is non-alcoholic. Okay, alcohol is not the causative factor, but NSAIDs are. On examination, he is pale, epigastrium tenderness, no hepatosplenomegaly, upper GI sore, small duodenal ulcer on the posterior wall. Serology for H. pylori is positive. Name non other invasive and non-invasive tests. You have to put the table और इसके names लिखने हैं. Write down standard non-bismuth. Non-bismuth therapy लिखनी है. Non-bismuth therapy में we used to give, इसमें regimes भी लिखनी है. ओमेप्राजोल देते हैं हम 20 mg BD, क्लेथ्रोमाइसिन हम देते हैं 500 mg BD, और उसके बाद हम अमोक्सिसिलिन या मेट्रोनिडाजोल देते हैं. अमोक्सिसिलिन देनी है 1 ग्राम BD और मेट्रोनिडाजोल देनी है 500 BD. उसके बाद a 45-year-old obese male give history of periodic epigastrium pain radiating to the back, particularly after 2 to 4 hours after meal, occasionally at bedtime. अच्छा, इतनी हिस्ट्री से कैन यू टेल मी इट्स अ duodenal और gastric ulcer? रात के टाइम किस में पेन होता था और खाने के 2 to 4 आवर्स बाद किस में पेन होता था? ये दोनों duodenal में होते हैं. गैस्ट्रिक में तो फौरन खाते हो, फौरन एसिड रिलीज होता है, डाइजेस्ट करने के लिए फौरन पेन होता है. रात को क्योंकि स्टमक एम्प्टी होता है, एसिड खाली पड़ा होता है, देयर इज नथिंग टू न्यूट्रलाइज इट, तो रात के टाइम जॉर्डनल के सिम्टम्स आते हैं. देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग और यूज ऑफ एनसेड, तो उसने दोनों नहीं ली. हाउएवर ही इज फाउंड ऑफ ईटिंग जंक फूड. ऑन एग्जामिनेशन देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इस्केमिक हार्ट डिजीज, बीपी नॉर्मल, पल्स नॉर्मल, no hepatomegaly, CBC, HB, hemoglobin is fine, platelet fine, liver function test सारे normal है. What is the most likely diagnosis? In list 2 other possibilities. अब periodic epigastrium pain की diagnosis तो ये हो गया पेप्टिक अल्सर डिजीज, duodenal अल्सर हो गया, और 2 other possibilities. DDs बताओ. एपिगेस्ट्रिक पेन की बतानी है यहाँ पे कि DDs क्या होंगे. Pancreatitis, very good. What else? शाबाश, gallstones. तो acute pancreatitis, acute cholecystitis लिखना है इसके DD में. Further investigations to required and confirm the diagnosis and its etiology. अगर आप लिख रहे हो पेनकेटाइटिस तो आपने सीरम लाइपेज, अमाइलेज, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करवाना है, देखना है. अगर गॉलस्टोन होंगे तो उसमें नजर आ जाएंगे. और अपर जीआई एंडोस्कोपी एंड बायोप्सी करानी है, क्योंकि वही हमें बताएगी कि हिस्टोलॉजी में चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं. साथ में हम कल्चर करवा लेंगे जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन इन PUD. आउटलाइन मैनेजमेंट of your most likely diagnosis. अब since is H. pylori induced तो आपने प्रोटॉन ट्रिपल थेरेपी लिखनी है. साथ में डाइटरी मॉडिफिकेशंस भी बतानी है उसको, लाइक यू डोंट हैव टू स्मोक, no aspirin, no NSAIDs, and if it fails then we will have to do vagotomy or partial gastrectomy. A 50-year-old woman, obese woman, is taking drug for painful osteoarthritis for last 2 years. For last 1 week, she is complaining of upper abdominal pain, vomited
blackish material on the day of admission. जब वो आती है admission पे तो उसको black color की vomit है सारी. On examination she is not looking pale. Her pulse and BP are normal. Her liver is normal. Spleen is not enlarged. What is the most likely cause of hematomesis in this patient? Cause of hematomesis. NSAID तो नहीं लिखना, सिर्फ NSAID induced PUD now presenting with complication which is perforation. Name 3 investigation required in this NSAID induced gastric ulcer. और वो भी perforate कर गए. अच्छा, enumerate 3 investigation in this patient. $24 hours के अंदर आपने एंडोस्कोपी करनी है with biopsy. साथ में माइक्रोबियल कल्चर भी करवा लो. What else? ब्लीड करिए तो सीबीसी भी करानी, बेस लाइन्स भी करानी है. सीबीसी, एलएफटीज, आरएफटीज. सीबीसी में देखना हीमोग्लोबिन कितना है. Does she need transfusion or not? What is the drug treatment for duodenal ulcer? इसमें regime, doses के साथ लिखना है answer. A 40-year-old male has history of recurrent epigastric pain which occurs after meal. Presents in emergency with massive hematomesis. अच्छा, ये gastric है या duodenal ulcer है? उसको कब होती है? Occurs right after the meal. ये gastric है. फौरन खाने के बाद होती है तो गैस्ट्रिक है. जिसे खाना जाता है तो उसको डिसॉल्व करने के लिए यू हैव टू प्रोड्यूस मोर एसिड, और वो एसिड क्या करते हैं? अल्सर को इरिटेट करते हैं, तो पेन होती है. हर बीपी इज इतना हाइपोटेंसिव है कि कार्डिया स्वेटिंग हो रही है. देयर नो हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक लिवर डिजीज. इसलिए बताते हैं ये क्योंकि रूल आउट करने के लिए हेमाटोमेसिस जो हो रही है उसको, वो इसलिए नहीं हो रही कि लिवर डिजीज है, वेरिसीज नहीं है उसको. वो ये बता रहे हैं आपको कि पीयूडी था, गैस्ट्रिक अल्सर था, and which is presenting with complication ब्लीडिंग, अपर जीआई ब्लीड के साथ में है. गिव इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ द मैनेजमेंट. अब कैसे करना है इसको मैनेज? अपर जीआई ब्लीड को कैसे मैनेज करते हो आप पहले क्या करते हो? 2 आईवी लाइन लगाते हो, उसका क्लिनिकल असेसमेंट करते हो, सर्कुलेटरी स्टेटस क्या है, बीपी कितना है, हाइपोटेंशन है, फोली डाल के देखते हो यूरिन आउटपुट आ रहा है कि नहीं. ठीक हो गया. साथ में पेट देखते हो उसका कि उस पर लिवर डिजीज के साइन है, कोई हेपेटोस्प्लीनोमेगैली है, एसाइटिस है, ठीक है, कोई क्यूटेनियस स्टिग्मेटा है. देन यू डू बेस लाइन्स. सीबीसी करानी है, एलएफटीज करानी है, आरएफटीज करानी है, पीटी, एपीटीटी, और साथ ब्लड का 2 pints ऑफ ब्लड अरेंज करा लेना है. रिससिटेशन के लिए हेमासिल देते हैं हम, क्रिस्टलाइट्स आईवी देते हैं जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई है. फिर ऑक्सीजन देते हैं. और 24 आवर्स के अंदर जब बंदा थोड़ा स्टेबल हो जाए तो एंडोस्कोपी करके कॉज को फाइंड करते हैं. A 50-year-old executive presented with history of episodic epigastric pain for the last many years with remission. His upper GI endoscopy shows an ulcerated lesion on the lesser curvature. Can somebody tell me lesser curvature पे duodenal होता है, gastric होता है? Lesser curvature is favorite site for which? Gastric. List 3 investigations to detect the possible etiology. How will you treat him? How would you like the patient to follow up? 3 investigations कौन सी करानी है? सीरोलॉजी करानी है हमने, यूरिया ब्रेथ टेस्ट करवाना है, फीकल एंटीजन कराना है, माइक्रोबियल कल्चर कराना है. उसके बाद हाउ वुड यू ट्रीट हिम? जब ये कल्चर और चीजें पॉजिटिव आएंगी तो यू हैव टू गिव एच पाइलोरी इरेडिकेशन थेरेपी. उसको लिखना है. जनरल मैयर्स बताने हैं उसको दैट you don't have to smoke cigarette. Aspirin, NSAID ये harmful है. अल्कोहल को भी कंजप्शन को लो कर देना है. And if it's
still does not get treated, तो we have surgical options. Follow up कैसे करना है इस patient को? फॉलो अप कैसे चेक करें इसको कि इज द पर्सन हैविंग अल्सर और द एच पाइलोरी वाज इफेक्टिव और नॉट? जो एरेडिकेशन regime थी was effective or not? How will you follow up the patient? Guess how do we follow up this patient? यूरिया ब्रेथ टेस्ट तो नेगेटिव आ सकता है एंड इट कुड बी फॉल्स नेगेटिव, तो अब कैसे फॉलो अप करें? Stool antigen becomes negative. Stool antigen is a better method of following up this patient. A 70-year-old lady helping her grandson in green grocery shop attended medical outpatient department with complaints of nausea, abdominal distension, vomiting, in which she noticed food eaten 24 hours previously. On examination, she was dehydrated. Succession splash was elicited 4 hours after food intake. On investigation, hemoglobin is 10, ESR is 10, sodium 145, potassium is less. Potassium 3.5 to 5 तक नॉर्मल होता है. बाइकार्बोनेट 21-29, तो बाइकार्बोनेट इज मोर, तो एल्कलोसिस हुआ हुआ है. Chloride is less. What is the clinical diagnosis associated bio? Gastric outlet obstruction लिखना है इसका आंसर. क्या लिखा हुआ है ये? Succession splash. Gastric outlet obstruction as a complication of ulcer, peptic ulcer disease, associated biochemical abnormality because vomiting, तो hypochloremic. Metabolic alkalosis with hypokalemia. आंसर इसका लिखना है gastric outlet obstruction. Succession splash है. अच्छा, name give 2 investigation to confirm the diagnosis. कौन सी 2 investigations हम करते हैं जिससे हमें diagnosis gastric outlet obstruction confirm हो जाता है? हाँ. अच्छा, बेरियम स्वेलो. जो बेरियम स्वेलो होता है वो एसोफेगस तक देख सकता है. यू हैव टू डू बेरियम मील. ये देख लो. एक होता है बेरियम. बेरियम स्टडीज होती है जिसमें आप बेरियम देते हो टू द पेशेंट टू ईट एंड देन विल वी डू एक्सरे स्टडीज. बेरियम स्टडीज में क्या हो गया, बेरियम पहले swallow देते हैं. swallow तक एसोफेगस तक देख सकता है सिर्फ. बेरियम मील देते हैं हम जब हमने स्टमक तक देखना होता है. फिर हम करवाते हैं बेरियम फॉलो फॉलो थ्रू. ये इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन तक देखता है. फिर हम करवाते हैं बेरियम इनीमा अगर हमने देखना होता है लार्ज इंटेस्टाइन को और कोलन को, कोलन रेक्टम को देखने के लिए. Yes, because gas and fluid is moving. यही मैं कह रही हूँ ना, बेरियम स्वेलो को एसोफेगस तक देख सकता है. बेरियम मील लिखना है आंसर. बेरियम मील करेंगे अपर जीआई एंडोस्कोपी विद बायोप्सी. थर्ड क्या चीज है? थर्ड का क्या है? थर्ड क्या चीज है?
Give 2 investigation barium meal and upper GI endoscopy, and give an outline of management. Outline of में क्या करना है, IV लाइन को स्टैब्लिश करना है, NG डाल के अगर और भी कोई फ्लूइड वगैरह है तो स्टमक में वो निकाल देना है. IV लाइन से हमने पोटेशियम रिप्लेस करना है, 4 लीटर आइसोटोनिक फ्लूइड देना है, पोटेशियम रिप्लेस करना है, IV प्रोटॉन पंप देने हैं. बेरियम स्वेलो एसोफेगस तक होता है, बेरियम मील स्टमक तक दिखाते हैं, बेरियम फॉलो थ्रू दिखाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन तक. बेरियम एनीमा हम करते हो रेक्टम देखने के लिए, कोलन देखने के लिए. A 60-year-old woman presents in emergency with massive hematomesis. She has history of pain in her knee joint, which she was seeing her orthopedic surgeon, who prescribed him some painkiller. She is pale and tender. And what is the most likely diagnosis? Massive hematomesis है. तो peptic ulcer disease में perforation हो गई है. And it is bleeding. Perforation से तो peritonitis हो सकता है, right? Bleeding peptic ulcer. Bleeding peptic ulcer. Immediate treatment should be cited. Immediate treatment हम क्या करते हैं, IV line. हाँ, it's bleeding peptic ulcer. Perforation होती तो shock के signs होते. Perforation होती तो peritonitis होता, board like rigidity होती, phrenic nerve को irritate कर रहे होते, shoulder पे pain होता, diaphragm जब irritate करती phrenic nerve को. It's bleeding peptic ulcer, hematomesis हो रही है. अब हम IV लाइन सिक्योर करते हैं, 2 IV लाइन डालते हैं, क्लिनिकल स्टेटस करते हैं, बेसिक इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, रिससिटेट करते हैं यूजिंग फ्लूइड्स और ब्लड, ऑक्सीजन देते हैं, एंडोस्कोपी करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं इस पेशेंट की. A 28-year-old woman with chronic dyspepsia. She has no history of NSAID intake. She has been treated with omeprazole, which gave her temporary relief. On examination, there is mild paler epigastrium tenderness. Blood culture examination revealed mild hypochromic microcytic anemia. Stool was positive for occult blood, like hidden bleeding थी जो GIT में हो रही थी. Upper endoscopy showed ulcer in the first part of duodenum. What do you think may be cause of her ulcer? NSAID तो वो ले नहीं रही. Cause of ulcer क्या होगी? H. pylori. उन्होंने पेप्टिक अल्सर डिजीज नहीं पूछा, आपसे कॉज ऑफ अल्सर पूछी है. राइटिंग PUD will give you 0 marks. H. pylori. How will you confirm the diagnosis? We have invasive and non-invasive test. How will you manage her? Triple regime देनी होती है, सिर्फ प्रोटॉन पंप देने से nothing happens. You have to eradicate. साथ में जनरल मैयर्स बताने हैं, साथ में सर्जरी की ऑप्शंस भी बतानी है. Triple regime, and if it's not successful, you will go towards quadruple regime. A 32-year-old housewife complains of excessive dysphagia, pain in epigastrium, intermittent vomiting for past 3 years. She has been treating with antacids, ACE2 receptor blocker, and various proton pumps on many occasions with temporary relief. Clinical examination is unrevealing except for tenderness in epigastrium. जब सिर्फ tenderness आती है. Excessive dysphagia. Initially सारा कुछ ऐसा लगता है eclasia, लेकिन eclasia का ट्रीटमेंट उसको मिल चुका है and still there is no relief. Give 3 possible causes of her clinical condition. एक तो eclasia हो गया. What else do you think could be the cause of her condition? ठीक है, कार्सिनोमा हो सकता है, बिल्कुल ठीक है. eclasia हो सकता है. और क्या हो सकता है? अच्छा, इसको फंक्शनल डिस्पेप्सिया हो सकता है. फंक्शनल लाइक देयर इज नो कॉज. जब क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं सिर्फ टेंडरनेस एंड एपिगैस्ट्रियम मिलती है, कुछ नहीं हो सकता. तो फंक्शनल हो सकता है. फंक्शनल लाइक एंजाइटी और डिप्रेशन आर making her have these somatic symptoms.
पायलोरिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन में आपको सक्सेशन स्प्लैश लिखा हुआ होता, सो राइटिंग पायलोरिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन इज रॉन्ग। सिर्फ डीप टेंडरनेस एंड एपिगैस्ट्रियम मिल रही है, वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन अनरिमार्केबल ना लिखता, वो लिखता है कि सक्सेशन स्प्लैश मिल रही है, पहले भी उन्होंने एससीक्यूज में लिखा है। हाँ वॉमिटिंग है, एक लेजिया, लेकिन उसने एपिगैस्ट्रियम को चेक भी किया, उस पर सिर्फ डीप टेंडरनेस मिली है, तो फंक्शनल है। इसको इसको लिखो फंक्शनल डिस्पेप्सिया, फंक्शनल पेशेंट है। दूसरा ZE सिंड्रोम भी हो सकता है। ZE सिंड्रोम में भी पेप्टिक अल्सर की तरह होता है, गैस्ट्रोनोमा बना होता है जिसकी वजह से एक्सेस एसिड सिक्रीशंस हो रही होती हैं, और उसमें बेशक आप प्रोटॉन पम्प और चीजें सारी दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें सोमेटोस्टेटिन देना होता है। फंक्शनल डिस्पेप्सिया, ZE सिंड्रोम, PUD। अच्छा, अगर ZE सिंड्रोम को रूल आउट करना है तो गैस्ट्रिक लेवल्स कराने पड़ेंगे, बाकी अदर इन्वेस्टिगेशन आपने PUD की लिखनी है, एंडोस्कोपी करनी है, साथ में बेरियम मील भी करा दो टू सी गट के कहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है कि नहीं, एंड राइट डाउन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन द मैनेजमेंट। जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम, उसमें गैस्ट्रोनोमा होता है। गैस्ट्रोनोमा क्या करते हैं, पाराइटल सेल से एक्सेस एसिड सिक्रीशंस कॉज कराता है। इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन द मैनेजमेंट ऑफ दिस केस, कैसे इसको मैनेज करें। अगर फंक्शनल डिस्पेप्सिया आता है तो हमने उसको एंटी डिप्रेसेंट्स देने, उसकी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी करानी है। अगर ZE सिंड्रोम आता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सोमेटोस्टेटिन्स देने पड़ेंगे, साथ में जो उसको वॉमिटिंग और ये चीजें हो रही हैं उसमें इलेक्ट्रोलाइट उसका इम्बैलेंस हुआ होगा, उसको ठीक करो, IV फ्लूइड्स दो, इलेक्ट्रोलाइट्स दो।